निसर्ग 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 छह कोड होमवर्क सब निकालो पड़ा। अरे वो तो नाम पण हे पण पहिला तो अपेंडिक्स ची सर्जरी करायला त्याआधी हे पण मुडुमुडी हे काम काही पण होते तुम्ही ध्यान रखो अपेंडिक्स क्या पण नहीं सके आज सेकंड एंड थर्ड बैच तुम्हारा क्लास बड़ा से आज ये फुल ज्ञानी सेकंड बैच फुल जाएगा और बैच सी होमवर्क चेक कर लो पहले फटाफट। तुम होमवर्क अभी कर रहे हो। अरे यार मधु आपके जो सम करना है वाला ऑपरेटिंग वाला चेक सर 2000 पण सेम च तुम्ही लिहिली साधे लिहिली दबावात सर उभा राहा तुम्ही आवे सर सी 28 सम 28 लाख 24 और 26 ये कौन सा कर दिया है 28 नहीं 20 नहीं वो रॉन्ग 24 एंड 26 पहला बैलेंस शीट देख लो। सोर्सेस ऑफ फंड्स कैपिटल 60 का 72 हुआ इंक्रीज ऑफ 12 विच इज इंक्रीज ऑफ 20% मिला। प्लीज चेक। रिजर्व्स 24 का 30 हुआ है इंक्रीज ऑफ 6000 विच इज इंक्रीज ऑफ 25% मिला। हेलो शेयर होल्डर्स फंड 84,000 का 1,02,000 which is increase of 18,000 that is 21.43% मिला। borrowed funds as loans 34,000 का 51,000 increase of 17,000 which is 50%. then total funds available are 1,18,000 का 1,53,000 which is increase of 35,000 that is 29.67% मिला नित्य। फिक्स्ड एसेट्स 120 का 150 हो गया which is increase of 30,000 that is 25%. then net current assets के लिए current assets are 28 का 27 हुआ तो decrease of 1 which is minus 3.57% मिला। current liabilities 30 का 24 decrease of 6 which is minus 20%. and net current assets minus 2 का 3 हुआ है ठीक है नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है so that is increase of 5,000 which is dash plus 250% wrong yeah don't write plus 250% you have copied from somewhere it is plus 250%. I told you many times minus का plus होता है तो denominator negative है तो divide नहीं कर सकते infinity है वो dash। total funds employed total funds applied आएगा 1,18,000 का 1,53,000 which is 35,000 increase of 29.67%. look at revenue statement पहला वाला क्लियर है। वर्किंग नोट समझ में आया वर्किंग कैपिटल सर वर्किंग कैपिटल समझ में आया -2 का +3 दैट इज इंक्रीज ऑफ 5। नाउ रेवेन्यू स्टेटमेंट ध्यान से देखना। सेल्स 6 लाख का 4,50,000 हो गया है डिक्रीज ऑफ 1,50,000 विच इज डिक्रीज ऑफ 25% मिला। हेलो माइनस सेल्स रिटर्न 1 लाख का 50,000 विच इज डिक्रीज ऑफ 50,000 decrease of 50,000 left hand row sales return 1 lakh का 50,000 decrease of 50,000 which is 50% decrease below sales 5 lakh का 4 lakh हो गया decrease of 1 lakh which is decrease of 20%. COGS 3 lakh का 2 lakh decrease of 1 lakh which is decrease of 33.33%. Gross profit 2 lakh का 2 lakh ही है no change no increase decrease. Operating expense में office expense 50,000 का 40,000 decrease of 10 which is decrease of 20%.
selling expenses 50,000 का 40,000, decrease of 10, which is decrease of 20%. Then there is operating expense का total, एक operating expense का total आएगा, वो नहीं लिखा है. 1 lakh का 80, which is decrease of 20, that is 20% का decrease. Then you have operating profit. Operating profit 1 lakh का 120, which is increase of 20,000, which is increase of 20%. मिला? हेलो. फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होएगा. सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम मुझे लिखा ही नहीं है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम यू विल ऐड 25 का हो गया है 15, so decrease of 10, which is decrease of 40%. Then non-operating expense 15 का 5, which is decrease of 10, that is decrease of 66.67%. ये बैग उठा. Non-operating expense 15 का 5,000, which is decrease of 10,000, that is 16.67%, 66.67%. Then you have final net profit before tax. Net profit before tax में नहीं लिखा है, it is all wrong. 8 में से 4 आएगा इसमें. Net profit before tax तुम्हारा है 1,20,000 का 1,30,000 हुआ, बराबर है, which is increase of 10,000, which is 8.33% increase. Then you have tax. Tax is 50%, तो 60,000 का 65,000, increase of 5,000, which is 8.33%, and net profit after tax is also 60 का 65,000, which is 5,000 का increase, which is 8.33%. Is this clear? खाली इसमें एडिशनल आइटम क्या था? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. नॉन ऑपरेटिंग इनकम you have to add, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस you have to subtract. Is this clear? Now, listen. See, last lecture we started with ratio analysis. अभी आज का लेक्चर है ना, आपको बोर्ड्स में रेशियोज का सम आ चुका है. ओके, 8 मार्क के लिए रेशियो एनालिसिस पूछा जा चुका है. So for 8 marks they can ask you 2 to 3 ratios. So we have done total 7. What 7 ratios we have learned? Number 1 was current ratio. What is the formula for current ratio? Current assets upon current liability. Standard should be 2:1. 2:1. Current assets should be twice the amount of current liabilities. Is that right? क्या इंडिकेट करता है ये? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. व्हाट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी? इन शॉर्ट टाइम पीरियड में business has sufficient money to pay off its liabilities. Then we saw quick ratio. What is quick ratio? Liquid ratio, quick ratio, एक और नाम क्या था? Asset test ratio. ये फॉर्मूला क्या है इसका? Liquid assets upon liquid liability. What are liquid assets? Short term का भी short. 2-3 महीने में जहाँ से पैसा आ सकता है. So how do you arrive at quick assets? It is current assets minus stock minus prepaid expense. And what are quick liabilities? 2-3 महीने में चुकाने का. So it is what? Current liabilities minus bank overdraft minus income received in advance. So ये करने के बाद आपको quick assets, quick liabilities मिल जाते हैं. इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 1:1. एकदम शॉर्ट टर्म में एक्सेस नहीं रखा तो चलेगा, एटलीस्ट उतना रखो. जितना करंट एसेट है उतना लायबिलिटी रखो. कुछ जल्दी आ जाए तो आपके पास पैसा बफर होना चाहिए, बराबर है. उसके बाद हमने देखा था ये दोनों बैलेंस शीट रेशियो थे. फिर 3 हमने रेवेन्यू स्टेटमेंट के देखे थे. उसमें तो सिंपल थे. जीपी रेशियो इज व्हाट? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. एनपी रेशियो एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आ जाता है? 2 पार्ट्स, COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस. COGS and operating expense. What is the formula for operating ratio? It is COGS plus operating expense upon net sales into. That was operating ratio. That was operating ratio. Operating ratio मतलब operating profit नहीं, operating cost ratio. Is it clear? Then we saw hybrid. Hybrid में एक देखा ROCE. What is ROCE? Return on. What is ROCE का formula?
प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड. प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मतलब इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड माइनस करने से पहले अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100. व्हाट इज टोटल कैपिटल? खुद का प्लस बाहर वाले शेयर होल्डर प्लस बोरोड. तो टोटल कैपिटल पे जो कमा रहे उसको बोलते हैं आरओसी. दूसरा होता है आरओआई. प्रैक्टिकली अलग होता है लेकिन मैंने आपको बताया थियरी में दोनों सेम. आरओसी और आरओआई दोनों का फॉर्मूला सेम अप्लाई करने का. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन टोटल कैपिटल इनटू. सर रेशियो तो फिर इनटू 100 सारे रेशियोज परसेंटेज फॉर्म है. खाली करंट रेशियो नहीं होता. वो प्रथा चली आ रही है इसकी. बाकी तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म. अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. बट फॉर्मेट चला आ रहा है तो उसमें करंट रेशियो लिक्विड रेशियो खाली 1:1 के फॉर्मेट में होता है. समथिंग 1:1 एंड बाकी सब परसेंटेज. चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे. नाउ दीज आर सिंपल प्रॉब्लम लाइक मैथ. फॉर्मूला अप्लाई करो, गेट द आंसर. नो द फॉर्मूला, यू नो द आंसर. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 13. हमने 13 किया था लास्ट लेक्चर. पेज 173. 11 किया 12 किया था. 13 बाकी है. अच्छा राइट. क्वेश्चन 13 देखो. 13 का है ना, दो पार्ट्स लिख दो ए और बी. 13A 13B. पहले 13A कर रहे हैं हम लोग. वो एक लाइन का प्रॉब्लम है. 13A इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम. तो जो टोटल एसेट जहां से चालू हो रहा है ना वो 13B लिखो. प्रिंटिंग एरर है वो. एक लाइन का ही है. 13A is just one line. 13B is next line. See, check 13A. Current assets of a company are 6 lakhs and its current ratio is 2:1. Find out its current liabilities. कर सकते हो? फॉर्मूला लिखना है. Current ratio is what? Current assets upon current liability. So 2:1 is 2/1 is equal to current assets are 6 lakhs upon current liabilities we don't know, so therefore current liabilities are 6 lakhs upon 2, which is 3 lakhs. So it is, the format is same for all the ratios problems. You have to just show the formula, apply the amounts and get the answer. बाकी आपको कुछ दिमाग ज्यादा लगाने का है नहीं इसमें. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम फिट हो रहा है, फॉर्मूला में डालो, गेट द आंसर. फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. और फॉर्मूला भी रट्टा वट्टा मत मारो, समझ के करो. सबके पीछे कहानी है. तो कंपनी को स्टडी करते हो तब एक एक रेशियो आपको एक स्टोरी बताएगा. ओके. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 13B देखो. See, total assets are 2,20,000. Can you see that? Fixed assets are 1 lakh. Capital employed 2 lakhs. There were no long-term investments. Calculate current ratio. So it's like a puzzle. आपके पास टोटल एसेट्स दिया हुआ है 2,20,000. फिक्स्ड एसेट भी दिया हुआ 1 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है 2 lakhs. पूछा है करंट रेट. देयर वर नो इन्वेस्टमेंट्स. सो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो. हाउ डू यू गेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? इट्स व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट करंट एसेट्स. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. राइट. अभी बोला है कि इन्वेस्टमेंट तो नील है. तो what is your capital employed? It is fixed assets plus net current assets. And out of that you know fixed assets. What are your fixed assets? Total assets minus fixed assets will be Fixed assets are 1 lakh. हिला? तो current assets 1, ये total assets भी दिया हो.
तो जैसे जाना है तो यहाँ पे टोटल एसेट्स आर व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. So total assets are 2,20,000, which is 1,00,000 plus current assets. So therefore current assets are 2,20,000 minus 1,00,000, which is 1,20,000. ये मिल गया. सिंपल. 2,20,000 टोटल एसेट है, उसमें से 1,00,000 के फिक्स है तो 1,20,000 के करंट हो गए ना. एक और हिंट है. Capital employed is 2,00,000. How do you get capital employed? Total capital employed क्या होता है? It is fixed asset plus investment plus net working capital क्या है? Current asset minus current liability. बराबर है? तो अपने को पता है fixed asset कितना है? 1,00,000. ये भी पता है. Capital employed 2,00,000. इन्वेस्टमेंट नील बोला है. करंट एसेट हमने ढूंढा 1,20,000 माइनस करंट लाइबिलिटी. आई थिंक आई कैन गेट माय करंट लाइबिलिटी विच इज 2 माइनस ये सब ये बाजू लेके जाओ तो इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया. 2,20,000 माइनस 2,00,000 विच इज 20,000. ये तो आता है ना सॉल्व करने की. सिंपल इक्वेशन, वन वेरिएबल. Easily you can find out. Is it right? So you know current liability, you know current asset. So what is current ratio? Current asset minus current liability. 1,20,000 upon 20,000, which is what? 6:1. अच्छा है बुरा है? अच्छा. 6:1 का करंट रेशियो अच्छा है. बहुत ज्यादा पैसा इसका करंट एसेट्स में ब्लॉक है और वहां से कोई रिटर्न आने वाला कर सकते हो. धंधा चलेगा लेकिन स्लो चलेगा, हाथी के पीछे चलेगा. सर यहाँ पे टोटल एसेट्स 2,20,000 है, टोटल लायबिलिटी भी 2,20,000. ये वो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी नहीं है. ये इधर टोटल क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल अवेलेबल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. यहाँ पे टोटल एसेट मतलब फिक्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट. इन्वेस्टमेंट को नहीं ले. तो टोटल एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट. टोटल एसेट तो मतलब खाली टोटल एसेट, डोंट कंसीडर लायबिलिटी. ओके, मिला? क्लियर है? 13B. चेक 14. 14 देखो. अच्छा 14 में भी 14 देखो. वर्किंग कैपिटल इज 50,000. एक मिनट, 2 है उधर भी. हाँ 14 का भी 2 कर दो. 14 है 14B. 14 है 14B. 14 है एक लाइन का है, 14B नीचे है. 14 में 2 है. 14 है 14B. देखो 14A बता रहा हूं. वर्किंग कैपिटल 50,000 है, करंट एसेट 60,000, स्टॉक 10, प्रीपेड एक्सपेंस 4. आपको क्या पूछा है? क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो you tell me how will you take a start? अपने लिक्विड एसेट्स चाहिए सबसे पहले. लेट्स फाइंड आउट लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक माइनस करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. बराबर है? करंट में से इतना निकालो तो लिक्विड मिलेगा. तो दिस इज 60,000 माइनस स्टॉक इज 10 माइनस प्रीपेड इज 4. सो 46 आता है. इज दैट राइट? प्लीज फोकस. मिला? So now we need liquid liabilities. How will you find out liquid liabilities?
करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक कोड बट बैंक कोड ही दिया है कुछ, नहीं वी आर डूइंग जस्ट 14 है, ऊपर एक लाइन है, फिर 14B है अलग है, 14 में नहीं है, बैंक कोड ही नहीं है। डू यू हैव प्री रिसीव्ड इनकम? वो भी नहीं है, तो व्हाट कैन बी अज्यूम? nil. So current liabilities themselves are liquid liabilities. So do we know current liabilities? How will we find out current liabilities? Working capital पता है. What is the formula for working capital? Current assets upon current liabilities. So we know current asset minus current liabilities. We know working capital which is 50,000. We know current asset which is 60,000 minus current liability. Therefore, current liabilities are 60 minus 50, which is 10. So, since there is no bank OD, there is no income received in advance, so current asset, quick liabilities both are same. Liquid liability, current liability, दोनों same है. So now you can get your quick ratio. What is your quick ratio? Quick assets upon quick liabilities. Quick assets are 46,000. Quick liabilities are 10,000. So you get it as 4.6:1. 4.6:1. Good or bad? चलता है Bad. Very bad. Yeah, What is the standard for quick ratio? 1:1. 1:1. You are keeping aside 4.5 times your current assets. Unnecessary blockage of funds. ये है ना समझ बहुत लेट आती है लोगों को, इनके फंड्स कहाँ ब्लॉक्ड है और पैसे आ ही नहीं रहे। पैसा एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट से तो चलना चाहिए, एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो एफडी में डाल के रख देना चाहिए। कैश फॉर्म, बैंक फॉर्म, इनलिक्विड एसेट्स विच डू नॉट इंक्रीज इन वैल्यू, विच डू नॉट फेच यू एनी रिटर्न्स, सब जाम, ऐसा जाम। नाउ 14B पढ़ो। 14B ट्राइड ऑन योर ओन, कर सकते हो, ट्राई करो 14B। चलो चलो ध्वनि 14 वाला B वाला पार्ट ट्राई करो। अभी इसका टेस्ट नहीं रहेगा ना? इसका टेस्ट नहीं है, ये सीधा प्रीलियम के साथ। हम लोग को पाकेट एप्पल बहुत पीने में से इसलिए आगे बुरी मत खाइए। चलो गाइस क्विक लिखो उधर, करंट लायबिलिटीज 150। अप्रोच क्या होगा? करंट लायबिलिटी 150 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 50 है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख है, इन्वेंट्री 1 लाख है, कैलकुलेट क्विक रेशियो।